Good morning everyone. Welcome to my class. Today we are going to start with the numericals related to angular projection and other kind of projections. So first numerical is on the screen. Find the angle of projection of the particle for which horizontal range and maximum height are equal. ठीक है, तो horizontal range और maximum height कब equal होगी? Let us see. मैक्स horizontal range के लिए क्या फार्मूला होता है? ये कहता है कि horizontal range is equal to maximum height h. तो रेंज के लिए क्या फार्मूला है बेटा? u स्क्वायर sin टू थीटा डिवाइड बाय g एंड दैट इज इक्वल टू h के लिए u स्क्वायर sin थीटा divided by 2g. Now solve it and calculate theta. Very easy question it is. Eliminating u square, eliminating g, तो ये आपके पास आया 2 sin of, देखिएगा सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू sin थीटा स्क्वायर है इंटू साइन ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाय 2. 1 sin थीटा विल गेट एलिमिनेटेड हियर, तो यहाँ से आपके पास बनेगा टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू, देख लीजिएगा टेंजेंट ऑफ थीटा 2 to the 4 ये ऐसे जाएगा, ठीक है 4 एंड दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4. So for this particular angle, tan inverse of 4 means tangent of theta is equal to 4 or theta is equal to tan inverse of 4. Both of them are equal. Very easy question. Just note it down. Next question on the screen is again a very simple question is on the screen. Prove that R max is equal to 4 times H max when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range. और हम जानते हैं maximum horizontal range कब होगा? If theta is equal to 45 डिग्री और 45 डिग्री पर R max कितना होगा बेटा? R max हम जानते हैं u स्क्वायर बाई g होगा. u स्क्वायर sin टू थीटा sin 90 वो आपके पास 1 होगा बाई g. दिस इज R max. ठीक है. नाउ व्हाट इज h maximum at, what is the value of h max at this particular angle? तो मैक्सिमम हाइट मतलब h max से हमारा कहने का मतलब ये वाली हाइट है. दिस इज h max यहाँ पर, ठीक है इस क्वेश्चन में. तो h max का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. तो थीटा 45 है, पुट इट हियर u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, तो u स्क्वायर 1 बाई रूट 2 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइड बाय 2 आपके पास बनेगा u स्क्वायर बाई, सॉरी g और रह गया हमारे पास यहाँ पे, तो ये बनेगा u स्क्वायर बाई 2g 4g. u स्क्वायर बाई g क्या है आपके पास? r मैक्सिमम है, तो u स्क्वायर बाई g r मैक्सिमम हो जाएगा, तो r मैक्स डिवाइड बाय 4. दिस इज योर आंसर. सो h max इज इक्वल टू r max बाई 4 और r max इज इक्वल टू 4 टाइम्स h max. बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट न्यूमेरिकल है बट ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज अगेन अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. फॉर टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा एवरीबडी नोज हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम. ठीक है, तो प्रूव दैट सम ऑफ means maximum height calculated at an angle theta, maximum height calculated at an angle 90 minus theta. अगर हम उनका सम करें तो the answer should be independent of angle theta. बहुत सिंपल सा है, आपको बस कैलकुलेट करना है. तो कैसे निकालेंगे बेटा? अगर हम h1 के लिए कैलकुलेशन करें, this is u square sin square theta and divide by 2g. This is h1. Now let us say what is h2. h2 is u square sin square theta, that is 90 minus theta divided by 2g. sin 90 minus में theta, of course it would be cos of theta. तो ये आपके पास बनेगा u square cos square of theta. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. 2g सम करें, h1 plus h2 कैलकुलेट करें तो कैसे हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है. u square sin square theta divided by 2g plus u square cos square of theta divided by 2g. सम कर दो बेटा इनको, sin square plus cos square रह जाएगा, मीन्स u square by 2g कॉमन आ जाएगा. sin square of theta plus cos square of theta आपके पास क्या होगा? 1 होगा, तो ये u square by 2g. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
This particular term is independent of angle theta that was asked in the question. Next question on the screen is another small problem, that is calculate the angle of elevation at maximum height. तो बेटा मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाला पॉइंट है, आपको एलिवेशन का एंगल कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एलिवेशन है, इस एलिवेशन का आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमने बीटा मान लिया, ये थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये डिस्टेंस इसका r/2 बनेगा। तो एक्चुअली टेंजेंट ऑफ बीटा हमें कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी h ओवर r/2 परपेंडिकुलर ओवर बेस, perpendicular over base tangent of beta r/2 and that is 2h by r। तो beta is equal to tan inverse of 2h by r is your answer। और अगर इसको डिटेल में करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल तो h और r की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा that is 2h by r and it would be 2h। h कितना होता है सभी बच्चे जानते हैं, u square sin square of theta, theta is the angle of projection, u square sin square theta divided by 2g, ये आपके पास h होता है। what is r is u square sin of 2 theta divided by g, ये आपके पास r होता है। eliminating g, eliminating 2, eliminating u square, what you are left with sin square of theta divided by sin 2 theta, ये आपके पास बनेगा sin theta and cos of theta, eliminating 1 sin theta, ये tan बन गया 1/2 tangent of theta, means tangent of beta would be equal to tangent of theta and divided by 2। very common and standard result है, आपको ये याद रखना है और इम्पोर्टेंट भी है कि एंगल एलिवेशन का कितना बनेगा, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। नाउ द क्वेश्चन इज a number of bullets are fired in all possible directions with some same initial velocity u, calculate maximum number of ground covered by the bullets। तो इसी में हम आपको एक अजमल कसाब आपने सुना होगा, टेररिस्ट, इसी क्वेश्चन से हम रिलेट कर देते हैं उस कॉन्सेप्ट को। वो एक टेररिस्ट था, वो प्लेटफॉर्म पर एंटर हुआ और प्लेटफॉर्म पर एंटर होके मान लीजिएगा ये गन है मेरे पास और वो प्लेटफॉर्म पे एंटर होता है, ये गन है उसके हाथ में, ठीक है। वो गन को ऐसे चलाता है पकड़ कर इस डायरेक्शन में, यहाँ 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 यहाँ, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो चलाता है। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस वो पूरा का पूरा घूम जाता है, ठीक है, ठीक है। वो ऐसे भी करता है, गन को इधर भी करता है, ऊंचा भी करता है, नीचे भी करता है, गन को ऊपर नीचे भी करेगा, ठीक है, गन को ऊपर नीचे भी करेगा और जो भी पॉसिबिलिटी है वो कर सकता है, ठीक है, जो भी उसका मन करे, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है बेसिकली, और इस से बहुत सारी गोलियां निकल रही हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस बुलेट से कितने डिस्टेंस तक के लोगों को या कितने एरिया वाले लोगों को खतरा है, ये बुलेट, इससे निकलने वाली बुलेट कितने लोगों को हिट कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल रेंज का एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करें, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की जो पॉसिबिलिटी है, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ऐसे करके चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरेगी बुलेट, ठीक है, गन तो वही है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकती है हॉरिजॉन्टली बुलेट, इससे वो डिपेंड करेगा द एंगल, और मैक्सिमम डिस्टेंस मींस मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये थीटा इज इक्वल टू 45, हॉरिजॉन्टल भी नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, बिल्कुल ऊपर भी नहीं, जब ये 45 हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन होगी तब इसकी मैक्सिमम रेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, वो मैक्सिमम रेंज निकाल लेते हैं और उसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम कंसिडर करते हैं कि भाई इस डिस्टेंस तक का व्यक्ति, इस डिस्टेंस तक का पर्सन प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हुआ है वो हिट हो सकता है, ठीक है, और उसको हम रेडियस मान लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज को आप रेडियस मान लीजिए और रेंज मानने के बाद आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज है तो इससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सेंटर में पॉइंट आउट करते हैं, इसको फिक्स करके इसको हम रोटेट करें तो ये कितना एरिया ट्रैवल करेगा, कितना एरिया ये कवर कर सकता है, ठीक है। और आप वो भी तो देखते हैं ना, क्रिकेट मैच आप देखते हैं, बैट्समैन हिट करता है तो सेंटर वहाँ से लेकर अगर हम वो लूप बना देते हैं, शॉट जब 6 लगता है तो उसका एक पैराबोलिक पाथ आपको दिखाते हैं बॉल का बना के कि यहाँ 6 लगा,
तो उससे हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज आपको इसमें निकालना है और वहाँ तक के लोगों की पॉसिबिलिटी है वो इससे हिट हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है भैया, आर मैक्सिमम जो हमारे पास रेडियस की तरह ट्रीट होगा वो होगा बेटा यू स्क्वायर साइन कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और यू स्क्वायर साइन थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी होगा, आर मैक्सिमम ऑलरेडी हमें पता है, तो बस एरिया कैलकुलेट कर दीजिए। मान लीजिएगा ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज था बुलेट के जाने का, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन खड़ा हुआ है, बुलेट फायर कर रहा है, ये मैक्सिमम है, सभी डायरेक्शंस में कर रहा है। तो इस रेडियस का अगर हम सर्कल बनाएं, इस रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ये जो सर्कल बनेगा, ठीक है, गलत बना दिया, इसका अगर हम इसको सेंटर मान के अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, मींस ये वाला सर्कल की अगर हम बात करें इस तरह का इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो ये जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस होगा, हर जगह रेडियस कितना होगा, ये आर मैक्स ही होगा, इन एवरी डायरेक्शन इट इज आर मैक्स, ठीक है। तो इस सर्कल का हम यहाँ पर, सर्कल मैंने ये प्लेन में बनाया है, आर मैक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आर मैक्स हम निकाल सकते हैं। तो एलिप्स नहीं है, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। तो अब लिख भी दो आंसर, कितना आया, पाई आर स्क्वायर, तो कितना आया बेटा, पाई आर कितना है आपके पास, यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, मीन्स पाई यू की पावर 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ये IEEE में भी आया क्वेश्चन है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन अ गुड क्वेश्चन एंड easier one on the screen, that is a projectile has same range for theta and 90 minus theta। हम जानते हैं थीटा के लिए t1 टाइम ऑफ फ्लाइट है और 90 माइनस थीटा के लिए t2 टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिएगा t1 अगर हम लिखें, t1 इंटू t2 अगर हम निकालें, सॉल्व करें डायरेक्टली, तो t1 थीटा के लिए क्या बनेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आप याद कर ले, अगर याद नहीं है तो 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी, 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी आपके पास फार्मूला होता है, एक के लिए आ गया, और दूसरे के लिए 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी। डिड यू गॉट माई पॉइंट? तो यहां से आपके पास बनेगा 4 व्हाट इज दैट, r मींस रेंज, ओके। तो ये आपके पास बनेगा 2u स्क्वायर, दिस इज 4, देख लें आप इसको एक बार, 2 हमने लिखा u स्क्वायर, ये लिखा हमने साइन ऑफ थीटा, ये हमने 2 एज इट इज छोड़ दिया था, u हमने ले लिया था, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा 2 इंटू 2, ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाई जी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गया आपको? अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे, यू स्क्वायर, ये बनेगी टर्म आपके पास, क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी स्क्वायर। देखो कुछ याद आ रहा होगा आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, अगर हम इसको लिखें, 2 को हमने अलग कर लिया, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा एंड डिवाइड बाई, एक जी हमने इधर लिख देते हैं और एक जी हम इधर लिख देते हैं, तो ये टर्म क्या बनेगी, रेंज के बराबर बनेगी। तो ये आपके पास आ गया 2 रेंज आर डिवाइड बाय जी। इज दैट क्लियर? तो T1 इंटू T2, अब देख लीजिएगा यहाँ से, T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, so which option is correct? Directly proportional to R, option number 4 is correct answer. Question on the screen is basically we are having 2 projectiles, one is having velocity u by root 3 and velocity u, both are projected at different angles 30 and 60 in opposite directions, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, तो वो रास्ते में, अब ये इधर से गया, ये इधर से गया है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बट नाउ द करंट प्रॉब्लम इज आपको टाइम बताना है, टाइम एट विच द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल A एंड पार्टिकल B बिकम्स 0, तो वो टाइम आपको बताना है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम t बताना है बेटा, एट विच सेपरेशन becomes 0, separation becomes 0, ये हमें बताना है, ओके। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट मस्ट बी हैविंग वेलोसिटी इन
इन बोथ डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा अगर हम लिखें, सो इट वुड बी u बाई √3 cos ऑफ 30 डिग्री। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, u बाई √3 साइन ऑफ 30 डिग्री। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें ओरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा u cos ऑफ 60 डिग्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये आपके पास होगा u साइन ऑफ 60 डिग्री। कंपोनेंट्स हमने रिजॉल्व कर दिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द सेपरेशन बिकम्स जीरो, सेपरेशन ऑन द ग्राउंड बिकम्स जीरो। इसका मतलब ये पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे तभी इनके, और एक ही पोजीशन होगा इनका दोनों का गिरने का जमीन पर, ठीक है, तभी ये बेसिकली क्या होगा आपके पास बिकम्स जीरो वाला केस बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिएगा कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका है, ठीक है, ये यहाँ पर जाता है, और ये प्रोजेक्टाइल सपोज यहाँ से ऐसे आया है, तो मान लीजिएगा कि बेटा ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट पर इनका सेपरेशन क्या है, जीरो है। तो मान लीजिएगा कि ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, से इट इज x1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है x2। x1 एंड x2 कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। तो x1 हम कैसे निकाल सकते हैं, x1 के लिए जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन x अलोंग x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो x एक्सिस में होती है, तो वो आपके पास x1 डिस्टेंस क्या होगा, ये x1 आप निकाल रहे हो, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, u बाई √3 cos ऑफ 30, u बाई √3 cos ऑफ 30 आ गया, u बाई √3 cos ऑफ 30। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम t, ठीक है, सेम टाइम में होगा, ये इतने ही टाइम में ये पहुंचेगा, उतने ही टाइम में ये पहुंचेगा, सेम टाइम में। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा आपके पास u बाई √3, बेटा cos 30 कितना होगा, sin 60, एंड sin 60 इज √3/2। तो ये आपके पास आया √3/2 मल्टीप्लाई बाई t, एलिमिनेटिंग दिस इज u बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t, ये आपके पास x1 आ गया। नाउ कैलकुलेशन फॉर x2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 आपके पास ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम t, तो आपके पास आया u cos ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाई सेम टाइम t। तो यहाँ आप लिखेंगे u cos ऑफ 60 कितना होगा, cos 1/2 होगा डेफिनेटली, इट इज 1/2 एंड देन t मींस u by 2 t is the second answer, that is this is equation number 2. Now x1 plus x2, it is given x from the figure, तो x1 plus x2 is ut by 2 plus ut by 2 that is equal to x, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, ये आपके पास बना ut is equal to x, और टाइम t can be calculated as x upon u will be the answer। तो अगर MCQs है, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, तो उसमें से आपका ये वाला करेक्ट होगा, दैट टाइम t is equal to x by u।